السلام علیکم. یہ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور کووڈ-19 جو ہے نا وہ کہیں سے کم نہیں ہو رہا. یہ میں آپ کو بتاؤں. یہ آپ جو شفقت محمود کی سٹیٹمنٹ ہے یا ٹویٹ ہے کہ جی مارچ پہلی کو اسکول کھول دیے جائیں گے، وہ ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں مجبوری میں ہو رہی ہیں، لیکن ہماری احتیاط جو ہے وہ اتنی ہی ضروری ہے، کیونکہ میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں روز کووڈ کا لوگ شکار ہو رہے ہیں. میری اپنی ٹیم میں کئی لوگ اس وقت کووڈ کا شکار ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں وہ علاج ان کا ہو رہا ہے. اور میں اپنی کرا سچ کی ٹیم کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں بات کر رہا. ہمارے گھروں پہ ہو چکا، میرے کلاس فیلوز کی ڈیتھ ہو چکی، کل بھی 50 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بہت سے لوگ ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، کیونکہ رورل بیک گراؤنڈ میں جب لوگ مرتے ہیں تو وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی منشا سمجھ کے پھر اٹھاتے ہیں اور وہ دفن کر کے آ جاتے ہیں اور ان کے ٹیسٹ نہیں ہوتے. یہ وہ ڈیتھس آپ کو پتہ چلتی ہیں جو رپورٹڈ ڈیتھس ہیں، جو ہاسپٹل اور لیب کی رپورٹس کے بعد جن کی ڈیتھس ہوتی ہیں، تو ان کا آپ کو پتہ چلتا ہے. اب ویکسین آ رہی ہے. یاسمین راشد نے ایک بڑی عجیب سی بونگی ماری اس کے اوپر، لیکن اس کے اوپر بھی میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا کہ انہوں نے یہ کیوں کہا. جو بھی انہوں نے کہا کہ جی اپنے رسک پہ ویکسین لگوائیں ورنہ نہ لگوائیں. لیکن یہ ویکسین کیا ہے، اس کا کتنا فائدہ ہے، اتنے ٹائپس کی ویکسین ہے، ان میں سے کون سی ہمیں سوٹیبل ہے ہمارے ملک میں. ڈاکٹر عمر چغتائی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ان کو میں نے آج ریکویسٹ کی ہے. چغتائی لیب کا اپنے نام سنتے ہیں، پاکستان میں بہت بڑا نام ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. تھینک یہ یو. مجھے پہلے تو بتائیں کہ ہم ہاؤ سیف از دا ویکسین. چلے اس سے شروع ہوتے ہیں. دیکھیں بشر، فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ. ہم ویکسینس کی سیفٹی اور ایفیکیسی کی بات کرنا بہت ضروری ہے، بیکاز اتنے سارے رومرز ہیں، اتنی ساری فالس خبریں ہیں جن کی وجہ سے لوگ بہت گھبرا گئے ہیں ویکسین سے. ویکسینس کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. ویکسینس ویدر وہ ٹائیفائڈ کی ہو، ہیپاٹائٹس کی ہو، فلو کی ہو، کوئی آج سے تھوڑی لگ رہی ہیں. ویکسینس تو پچھلے کئی دہائیوں سے ویکسینز ایک بہت ٹرسٹڈ انسٹرومنٹ ہیں پریونٹیو میڈیسن کے لیے. اور اس کے اندر جو میرے خیال سے جو لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں، اس کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ جی یہ چیز اتنی جلدی کیسے بن گئی. کہ پچھلے سال کووڈ-19 2019 کے اینڈ پہ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بیماری ہے، تو 2020 کے اینڈ تک ویکسین کیسے اویلیبل ہوگی. عام طور پہ ایبولا کی ویکسین فار ایگزامپل جو ہے وہ 7-8 سال کی ایفرٹ کے بعد سارس نہیں بنی، سارس کی نہیں ایچ آئی بنی. وی کی نہیں بنی. بالکل، وچ از اے ویری ویلڈ پوائنٹ. اس کا رسپانس میرے ذہن میں جو سب سے پہلا آتا ہے وہ یہ ہے کہ آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے آپ کے موبائل فون یا آپ کے پرسنل کمپیوٹر کی کیا سپیڈ تھی، اور آج آپ کی ٹیکنالوجی کہاں پہ ہے. سو ٹیکنالوجیکل ایٹریشن کے ساتھ ساتھ اور پھر جو ایک انٹرنیشنلی جب ساری دنیا کو ایک چیز کی ضرورت پڑتی، ایبولا کی ضرورت صرف افریقہ کو تھی. تو کیونکہ صرف افریقہ کو تھی تو ریسورسز بھی اسی کے مطابق ایلوکیٹ ہوئے اس چیز کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ایبولا کی ویکسین کے لیے. بٹ اگر کووڈ کی بات کریں تو کووڈ واز اے ورلڈ گلوبل وائڈ کرائسس. پینڈیمک. تو اس کے اندر امریکہ میں بھی، یو کے میں بھی، یورپ ایون میں بھی، پاکستان میں. چائنا میں بھی، لیکن ہر طرف ریسورسز ایلوکیٹ ہوئے R&D میں کہ اس چیز کی ویکسین جب تک نہیں آئے گی بیک ٹو نارمل نہیں ہو سکے گا. تو اس لیے آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ فائزر بھی، موڈرنا بھی جو امریکن کمپنیز ہیں، پھر آکسفورڈ ایسٹرازینیکا یورپین کمپنی ہے، یو کے کی کمپنی ہے، پھر رشین ویکسین آ رہی ہے، پھر چائنیز ویکسینز آ رہی ہیں. سارے ملکوں، جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین اب ایکسپیکٹڈ ہے چند مہینوں میں. تو سارے ملکوں میں لاٹ آف ریسورسز ایلوکیٹ ہوئے اس چیز کی ڈیولپمنٹ میں. اس کی وجہ سے جلدی ویکسین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور کافی تھورو فیز 3 ٹرائلز ہوئے ہیں اس کی سیفٹی کے اوپر. یس، اگر آپ ملینز اینڈ ملینز آف لوگوں کو ویکسین لگائیں گے تو ان میں سے کچھ افراد کے اندر کوئی الرجک ریاکشن ہوگا. کچھ لوگ زیادہ پری ڈسپوزڈ ہوتے ہیں الرجک ریاکشن کو. جس طرح کچھ لوگ زیادہ پری ڈسپوزڈ ہوتے ہیں دمہ کی طرف، کہ ایزما ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو جلدی ہوا لگ جاتی ہے، کچھ لوگوں کو جلدی سردی لگ جاتی ہے. ہر انسان اللہ تعالیٰ نے یونیک بنایا ہے. بٹ جنرلی اسپیکنگ ویکسینس بہت سیف ہیں. اور بہت سارے جو ان کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی شاید خواتین کو نہیں لگانی چاہیے یا کوئی کنسپیریسی ہے، تو یہ ساری یا باتیں اوور 60.
देखें अब ये तो आपकी मिनिस्टर ने कह दिया. देखें सबसे अच्छी जो रिस्पॉन्सिबल बात है ना वो ये है कि जिस दवाई के बारे में जो चीज़ इस्टेब्लिश्ड है कि ये सेफ़ है, उस एज ग्रुप में उसको इस्तेमाल किया जाए. अगर गवर्नमेंट या जो रेगुलेटरी इदारा है वो कहते हैं कि जी आपने वैक्सीन कंपनी ने हमें ये डेटा दिया है, हमारे ख्याल से आपने इतने हज़ार लोगों के ऊपर किया जो कि बिलो 60 हैं और चंद हज़ार लोगों के ऊपर किया जो अबव 65 हैं, तो मेरे ख्याल से अभी आप बिलो 60 शुरू कर लें, अबव 65 के लिए हम बाद में आपको फैसला बताएंगे. तो ये एक सेफ रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है. अब मसलन मुझे स्टेंट्स पड़े हुए हैं हार्ट में, तो मेरे लिए सेफ है कि नहीं? अभी तक जो डेटा है उसके मुताबिक नॉट ओनली आपके लिए सेफ़ है बट आपके लिए एक्चुअली ज़्यादा ज़रूरी भी है, बिकॉज पीपल हु हैव अंडरलाइंग कंडीशंस. तो मुझे कौन सी लगवानी चाहिए? मैं फाइज़र की तो लगवा नहीं सकता जाके वो. यस, मुझे मेरे बहुत सारे दोस्तों ने पूछते हैं कि कौन सी वैक्सीन बेस्ट है. मेरा जवाब यही होता है कि जो वैक्सीन अवेलेबल है वो बेस्ट है. तो हमारे दोस्त फैसल सुल्तान ने तो मेरा ख्याल है चाइनीज़ लगवाई जी है. बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा स्टेप है. देखें अमेरिका में आपको याद होगा जो बाइडन ने लगवाई जाके, डॉक्टर फाउची ने लगवाई जाके, दुनिया के सामने लगवाई, 50 कैमरास थे. वो वाले डर उनको खौफ नहीं था ना. यहाँ पे तो कहते हैं जी वायरलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है तो ये हो जाता है, तो बड़े बड़े डर पड़े हुए हैं लोग. जी बिल्कुल. हमें एज अ नेशन और हमारे जो लीडरशिप है उनको हमें ये स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा, दिखाना, एक पॉजिटिव एग्जांपल्स बननी पड़ेंगी कि जी देखें जाके वैक्सीन लगवाई और बिल्कुल ठीक ठाक हैं और ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है. लेकिन ये वैक्सीन वन टाइम तो नहीं है ना, ये तो हर 6 महीने के बाद फिर लगवानी पड़ेगी. अब ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में अभी हमें खातिर खा क्योंकि एक सर्टेन टाइम पीरियड है ना जिस पे उसका असर रहेगा. नहीं, वैक्सीन के लगाने के बाद एंटीबॉडीज़ तो रहते हैं और एंटीबॉडीज़ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाने की सलाहियत रखती है कि नहीं रखती. अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो तो रहेगा. जो इसके अंदर जो एक एक्स फैक्टर है वो ये है कि अगर वायरस म्यूटेट कर जाता है, जिस तरह के भी हम देख रहे हैं कि यूके में हो गया, यूके में हुआ, साउथ अफ्रीका में हुआ, तो उसके लिए हो सकता है, जिस तरह आज मैं पढ़ रहा था कि मॉडर्ना इज़ कमिंग आउट विद अ बूस्टर शॉट, कि उसके अंदर वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके तो वो एक बूस्टर शॉट हो सकता है लगाना पड़े लोगों को. तो अभी डबल जैब है तो ट्रिपल हो जाएगा. हम इस वायरस के बारे में, इस डिज़ीज़ के बारे में हमें टोटल अवेयरनेस इसकी 14 महीने की है एज़ कम्पेयर टू 40 साल फॉर HIV. एंड और ये एक 50 साल अनफॉर्चुनेट बात है. जी. लेकिन उसके अंदर जितना क्वांटम ऑफ नॉलेज, क्वांटम ऑफ रिसर्च हमने 14 महीनों में अकम्प्लिश किया, वो भी एक बहुत इनक्रेडिबल बात है. लेकिन देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर टाइम. तो हम जितना आज जानते हैं इस वायरस के बारे में, आज से 1 साल बाद इससे तो कहीं मैंने तो ज़्यादा आपसे लगवानी है वैक्सीन, आप कौन सी लगा के देंगे? हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अवेलेबल हो वैक्सीन. इंशाल्लाह ताला जैसी ही होगी मैं आपको बताऊंगा. तो आप कौन सी वाली की कोशिश कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं मल्टीपल वैक्सीन्स की, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि जो भी वैक्सीन आई, पाकिस्तान में 4 वैक्सीन अप्रूव्ड हैं. ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका अप्रूव्ड है पाकिस्तान में, साइनोफार्म अप्रूव्ड है जो कि गवर्नमेंट लगा भी रही है, कैंसिनो या कैंसाइनो वो अप्रूव्ड है, और चौथी जो रशियन स्पुतनिक वैक्सीन है वो अप्रूव्ड है. तो ये तो नहीं है कि वो चाइनीज़ लगवा के मैं चाइनीज़ बोलना शुरू हो जाऊंगा, उर्दू भूल जाऊंगा. मैंने बहुत सारे ऐसे मजाक देखे हैं, एंड वाइल दे आर फनी, अनफॉर्चुनेटली उनका बहुत ज़्यादा, दे आर ऑल्सो वेरी डेंजरस, बिकॉज लोग परेशान हो जाते हैं, लोग इसकी वजह से डिसवेड हो जाते हैं. एज अ नेशनल कैंपेन जैसे देखें, अगर कोविड को छोड़ दें 1 मिनट के लिए, 3 साल पीछे चले जाएं, आपको याद होगा एक ज़माने में पाकिस्तान के ऊपर एक रिक्वायरमेंट लगी थी कि अगर आपने पाकिस्तान से ट्रैवल करना है तो पोलियो की वैक्सीन लगवा के जाएं. जी हाँ. उसकी वजह ये है कि एज ए नेशन हम अकम्प्लिश नहीं कर सके पोलियो इरेडिकेशन, एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ ऑफ कोर्स हम पोलियो ड्रॉप्स ही नहीं ले रहे हम. बिल्कुल, हम अपने हेल्थ केयर हीरोज़ हम देखते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं उनको, बट दे आर ऑल्सो अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट. देयर इज़ डीप सस्पिशन ऑफ वैक्सीनेशंस. बहुत सारी एक हम पहले कहते थे कि ये सिर्फ कुछ इलाकों के अंदर ऐसे है, बट इवन इन लाहौर, इवन इन कराची, अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी सस्पिशियस, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. इसको हमें एज ए नेशनल कैंपेन इसको फाइट करना पड़ेगा, इस सस्पिशन को. तो अब आप एडवाइस करेंगे लोगों को कि वैक्सीन लगवाएं जो भी अवेलेबल हो उनको, यस, जो गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड हो. यस,
एब्सोल्युटली मैं तो गवर्नमेंट भी तो कुछ कर रही है ना, मैं अब आधों को वैक्सीन लगा देती है, आधों को प्लेसिबो लगा देती है। नहीं, दैट वाज अ ट्रायल। वो देखें, ट्रायल का मतलब ही ये होता है कि चेक किया जाए कि जिनको वैक्सीन लगी है उनको कितना फ़ायदा हुआ कंपेयर टू दोज पीपल जिनको वैक्सीन नहीं लगी। तो फेज़ 3 ट्रायल का तो मकसद ही ये होता है, और उसके अंदर तो जो लोग वैक्सीन लगा रहे होते हैं उनको भी नहीं मालूम होता कि उन्होंने किसको वैक्सीन लगाई और किसको नहीं लगाई। लेकिन उसी से आप इस तरह इस्टेब्लिश करते हैं कि वैक्सीन की सेफ्टी क्या है और वैक्सीन की एफिकेसी क्या है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक प्लेसिबो लगाता हूँ, मुझे वैक्सीन लगती है, और हम दोनों रिपोर्ट करते हैं कि जी मुझे वैक्सीन लगने के बाद बुखार हुआ थोड़ा सा और हेडेक हुई। तो अगर तो जिसको वैक्सीन लगी है उसको बुखार और हेडेक हुआ और आपको नहीं हुआ, तो फिर तो ये प्रॉबेबली वैक्सीन की वजह। लेकिन अगर दोनों को इंजेक्शन लगने के बाद हुआ तो प्रॉबेबली इट्स नॉट टू डू विद द वैक्सीन, इट्स टू डू विद द एक्ट कि जब फियर ऑफ द अननोन जो शॉट है। लगा हमें तो ये उसकी मुझे वजह से। बताइए इसके साइड इफेक्ट्स कितने हैं? साइड इफ़ेक्ट्स अभी तक मैक्सिमम रिपोर्टेड हैं, दे आर मोस्टली टू डू विद एलर्जिक रिएक्शन। इसीलिए मतलब मुझे पेनिसिलिन का रिएक्शन है, तो शुड आई स्टिल गो फॉर इट? द रिकमेंडेशंस आर, जो गवर्नमेंट ने अभी गाइडलाइंस भी बनाई है एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स के लिए, उसके अंदर उन्होंने एक बड़ी क्लियरली लिखा है कि वैक्सीनेशन सेंटर एक तो दे हैव टू बी रिकग्नाइज्ड बाय द रेलेवेंट हेल्थ अथॉरिटी, वेदर दैट्स डीजी हेल्थ और दैट्स द हेल्थ केयर कमीशन, एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ दैट। उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर एक ये भी है कि यू हैव टू हैव द कैपेसिटी कि अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है तो यू हैव टू बी एबल टू मैनेज इट। सो अगर आपको पहले एक वैक्सीन से एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो देन यू हैव टू बी मोर केयरफुल, बट अदरवाइज पेनिसिलिन के कोई कंपोनेंट्स नहीं है वैक्सीन। ओके, सो इट इज सेफ। तो आप ये एडवाइस करें लोगों को कि जो भी उनको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हो उस पर लगवा लेना चाहिए। यस, मुझे बहुत सारे, इवन मेरे बहुत सारे डॉक्टर फ्रेंड्स मुझे मैसेज करते हैं कि यार आपके पास वैक्सीन कब आ रही है, हमने वो गवर्नमेंट वाली नहीं लगवानी। मैं कहता हूँ यार हमारे अपने इदारे के लोगों ने भी रजिस्टर किया हुआ है, वी आर ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स, वी आर ऑल, तो आपको जो अवेलेबल है उसको आप लगवाएं, बट लगवाएं ज़रूर। ज़रूर लगवाएं। देखें बात ये है, वी हैव टू गेट बैक टू नॉर्मल एंड लेकिन ये तो नहीं है ना डॉक्टर साहब कि वैक्सीन लगवा ली तो अब मुझे हो नहीं सकता, ये तो गारंटी नहीं है। देखें, जो वैक्सीन इफ़ेक्टिवनेस जो हम कहते हैं, जो किसी वैक्सीन की 90% से ज़्यादा है, किसी की 70% से ज़्यादा है, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंटिंग डिज़ीज़ टू यू, कि आपको डिज़ीज़ नहीं होगा। जो अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो पाया लेकिन उसके ऊपर काफ़ी वर्किंग हो रही है, वो ये है कि आपको तो नहीं हो रहा है लेकिन क्या आप फिर भी कैरियर बन सकते हैं, यानी कि आप स्प्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एसिम्प्टोमेटिक। जी, तो इसीलिए अभी भी जिस तरह जो लोग वैक्सीन लगवा भी चुके हैं उनको भी कहा जाता है कि आप मास्क पहन के रखें ताकि आपकी वजह से किसी और को ना स्प्रेड हो जाए कोविड। तो असल वैक्सीन तो मास्क हुआ ना। इसमें तो कोई शक नहीं है। देखें, इसको कहते हैं नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन, एंड अभी डॉक्टर फारूकी कल परसों कह रहे थे कि प्रॉबेबली अमेरिका में 2022 में भी मास्क पहनने पड़ेंगे कुछ बड़ी गैदरिंग्स वगैरह में, ये वो। सो ये मास्क अभी ज़रूरी रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी रहेगी। आज मैं एक मूवी देख रहा था, वो चैलेंजर के बारे में, वो नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है, तो उसके अंदर लोग काफ़ी सारे इकट्ठे होकर बैठे, मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि ये सारे लोग इकट्ठे होकर अब क्यों एक खड़े साल हुए हैं? पहले हम खाना भी खाते थे ऐसे जी डॉक्टर साहब, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। बिल्कुल। तो वो अब वो आदत मैं नहीं आपको रही कि साल इस तरह- पहले कोई रेस्टोरेंट की तस्वीर भेजूंगा तो यू विल फ्रीक आउट जी कि ये कैसे हो गया नाम। बट एनीवे, थैंक यू वेरी मच। एक बात जो डॉक्टर साहब नहीं बता सकते, जो मैं कह सकता हूँ, वो यास्मीन राशिद का जो बयान है जो उन्होंने दिया कि जी अपने रिस्क पे लगवाएं। ये बेसिकली चाहते हैं कि आप लोग ना लगवाएं क्योंकि इनको इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम देखते हैं तो अभी तक गवर्नमेंट ने कोई खातिर खास स्पेंडिंग नहीं की है कोविड-19 के लिए। और यानी ये दुनिया को और WHO को ये बता सकते हैं कि देखो हमें इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लोग ही नहीं लगवा रहे, तो हम उसके बगैर गुजारा कर रहे हैं। ये भी एक क्रिमिनल एक्ट है और यास्मीन राशिद की स्टेटमेंट जो है इसकी प्रोब होनी चाहिए। इसके ऊपर भी कमीशन बनना चाहिए कि एक हेल्थ मिनिस्टर इतनी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट कैसे दे सकता है और उसके क्या वजूहात हैं। बट वैक्सीन तो लगवाना सबके लिए ज़रूरी है और सेफ्टी है। और जो आपको दिल के करीब हो, आपको एतबार हो, हुकूमत के ऊपर हो, प्राइवेट लैब के ऊपर हो, किसी हॉस्पिटल के ऊपर हो जो रजिस्टर्ड है, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, तो आप प्लीज़ जाएं, अपना नाम लिखवाएं और अपने आप को लाइन में रजिस्टर करवा लें ताकि आपको जल्द अज जल्द लगे और आप भी महफूज हों और आपके प्यारे भी महफूज हों। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।